So, once again, a very good morning to all of you, whoever is connected with us, and soon more people will be connecting with us. Some of the teachers and some of the students will be definitely connecting with us. Maybe it's an online event, though, so there may be some technical issues while joining and while connecting. So we will be welcoming them. In the meantime, also, I, Sarabjo, on the behalf of Deviate, welcome you. I personally requested the other people mute yourself. The technical team is, I think the technical team has not muted themselves. Video black Nitish sir, kindly look into the matter. The technical team has not muted themselves. मैं बंद कर दूं मिनट हां हुन आई ब्लूटूथ ऑन से मैं इधर पंगे तो मैं लेना we request them to mute themselves and I'm not a host sir, so I'm not giving साडी वीडियो आ रही है Nitish sir ठीक है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਆਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 minutes लीजिए I'll check लाइट ऑन कर I'm really sorry for लाइट ऑन कर यार I think he doesn't know that he's yeah, now it's okay. He has muted himself. So I personally welcome you all in this event of World Tourism Day 2020, and I welcome our guests who are from the overseas, and we are really very thankful to you, sir, that this is crucial time you have joined us at the night especially. And we are delighted to have Chef Dr. Izzat Hussain, Master Chef Kutab Singh Negi, and Chef Devashish Pandey. Devashish Pandey sir is coordinating with Nitish sir and organizing this event. Thank you so much, sir. And to start with the event, I would like to share one thing. The Deviate has launched this Department of Tourism in the last year, that is 2019 only, and the department is making a remarkable sign within a year of its existence, and we are very happy with this, though it's a new child to the family of Deviate, and it is getting a lot of love and affection from our team. And with the launch of this department, we started celebrating World Tourism Day. And last year, we were just focusing and we were just connected with the in-house people because it was an in-house event, and now we are connecting with the overseas people. So thanks to you, sir. Thanks to all of you. This year, we are dealing with the 3 events, that is cooking, painting, and dancing. Under the cooking category, we name it DAV Super Chef, and it is the season 1. We wish with the blessing of our mentor and with our guests, we can move ahead with this, and we can come up with the more ideas next year, and we can come with the more new innovation to the series. So to begin with, we would like to introduce our first judge and guest of the day, Dr. Izzat Hussain, who doesn't need any introduction from my side, though I would like to speak few words. He is an Indian television chef, and he is known for taking Awadhi cuisines across the globe, and he is a Unani physician and Mughlai chef. One thing I liked so much, that he has started his career as a doctor, and he belonged to the royal family of Awadh and related to the last that is Wadali Shah, and known for the cooking without using water. His food has a signature which I like so much, that is Izzat Ki Roti. And his first TV show is Quest on the Traveler XP, and he has launched his own food consultancy with Sheesh Mahal Kitchens. He was a part of the Lucknow. He born in Lucknow in 1984, and he wrote a book, Izzat Ka Khazana. Am I right, sir? Am I right, sir? No, my birth year is not right.
My birth year is not Okay. right. I am not dated. I born in the I born in the 60s. Okay, sir. That's why I asked you, am I right or not? If I have taken somewhere. Thank you so much, sir, for joining us. And now we would like to listen few words from you. It's over to Okay, you. thank you. Thank you very much to you and all of the colleagues who are over here and the speakers, whoever is going to be speak over here. So thank you for my lovely introduction with all of them. So I would like to say this, whether you put this competition. So competition is not a competition. It is just to, we are hunting the real talent from the society. So we says this competition. So if I could, I want to change the competition. So I want to say that we are hunting the real talent. I know whatever is hidden over the society and the kitchens and somehow. So it is very good effort and very good initiative. You people are taking that, you are hunting the people and where the talent is hidden and you are taking it out. So I would like to say thanks to your organization also. Here they are taking such a huge pain and working hard for it. And it's very, I mean to say it's a very noble prize. And about the cooking, I would like to say that cooking is something different, whatever we think right now. If I ask a question, why you are cooking, okay? So the basics has been lost. If I ask you the question, why you are cooking? So cooking is not very much necessary for us because cooking तभी तो शुरू हुई होगी ना जब से आग निकली है. आग से पहले तो हजारों साल लोग पहले से जी रहे थे. तो यानी कुकिंग हमारे सामने क्या है? What is cooking? So we have to think from that line कि what is cooking? Why we are cooking? Okay? So maybe you people understand what I'm saying. तो कुकिंग के लिए हमको जो एक चीज सोचनी है बहुत बड़ी, वो ये है कि जो मैंने सोचा है अभी तक, जो मैंने बहुत कुछ किया, मैं रिसर्च करता रहता हूँ, उसके ऊपर देखा करता हूँ, तो मुझे मिला कि I have got just two reasons only for the cooking. One is to soften the ingredient, and another one is to sterilize the ingredient. Whatever you is taking out cooking, so you want to make it soft. क्योंकि पहले खाना हम लोग खाते थे ना, जैसे चना खाते हैं हम लोग भिगो के खा लेते हैं, फिर हमने उसको कुक करना शुरू किया. कुक करने के बाद फिर हमने उसको दूसरे तरीके से खाना शुरू किया, उसको पीसना शुरू किया. जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास, जो मशीन या तमाम चीजें आती रही, तो अपनी इजीनेस के लिए हम उसको करते रहे. तो कुकिंग की अगर बेसिक्स हमारी खत्म हो जाएंगी तो हमारी कुकिंग नहीं रह जाएगी. तो आई जस्ट वांट टू से दिस. सो इफ यू पीपल वांट टू कुक, so go with the basics. I am always requesting to all of my students and colleagues, so please go with the basics. What the basics are needed for your ingredient. If you are adding some, होता है ना कि जहां पर हम फैट मिलाते हैं किसी भी तरह से, ऑयल या घी मिलाते हैं, उन चीजों में मिलाते हैं जिसमें फैट नहीं होता है. होता है ना, एक ब्रेड होती है, यू आर टेकिंग ए ब्रेड एंड यू आर अप्लाइंग ए बटर ऑन दैट. सो ब्रेड डोंट हैव द फैट इनसाइड, it don't have the any greasiness. So you are putting the butter on that bread to make it easily and take some fat also. And fat is very much necessary for our body. It's a jacket from us, jacket from the God to us. So अब ये एक नया फैशन निकला कि साहब आप फैट नहीं होगा रे, ये तो बड़ा फैटी है ये. और ये लोगों को मालूम होना चाहिए. being a doctor, I would like to share you one thing कि कभी आप जो है, अगर आप फैट ले रहे हैं तो उससे आप मोटे नहीं होते. कभी भी फैट से बिल्कुल भी मोटे नहीं होते. मोटे होने की बहुत सी दूसरी वजह है. फैट जो है सिर्फ दो चीजों से लेते हैं कि हमारे अंदर जो है वो एक लुब्रिकेशन होता है ना, हमारे पैलेट को लुब्रिकेट कर दे, टू मेक द ग्रीजी माई डिश. वी आर यूजिंग द फैट. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ द क्लेरिफाइड बटर, either this mustard butter. So whenever you are taking the butter or any greasiness and any fat, so that is just to grease your palate only. उसके बाद एक तो ये बात होती है, खाने के लिए हम एक होता है ना, एक आप रोटी का निवाला खाइए और उसको आप खाइए तो वो हमारे पैलेट पे घूमता रहेगा इसी तरह से. लेकिन अगर वही पूरी या पराठा खाइए तो फिर आप आसानी से वो you can swallow that. So that is the reason of the putting the fat with it, with your dish. तो आज के लिए इतना काफी है.
कि मैंने आपको इतनी एक बात बताई कि हम क्या चीज क्यों यूज करते हैं, तो इंग्रेडिएंट के बारे में मालूम होना चाहिए, फिर और दूसरी चीजों में दोबारा बताएंगे। जी, Maybe we can have a long session with you, sir. sure. So we can listen a lot from you, and we can learn a lot from you. Thank you so much for sharing these basic things with us. Yes, sir. And of course for joining with us also. And our next judge and the guest is Master Chef Kutab Singh Negi. We welcome you, sir. He has an experience of being a corporate chef at GBM India Hospitality SN Private Limited, and he is the General Secretary at World Chef Choice Federation India, and he is now a Master Chef at New York, USA, and he has joined with us from USA, and he joined Benares in Tribeca, which is known for its diverse Indian cuisine from 28 states of India. And prior to joining Benares Protein, he was having the experience at award-winning Indian restaurants across the globe, including Taj of India restaurant in Germany and Ashok Hotels in Delhi. So I would like to call Negi sir to share few words with us. Over to you, sir. Sir, your microphone is muted. Okay. Hello, good morning, everyone. Can you hear me? Yes, sir. So, welcome to DAV Super Chef Season 1. Thank you, sir. Welcome you too. The thing is, I am really agree with the chef Dr. Ijaz Sen. He is very right. What he said is really true. First of all, is the basic thing if you want to become a chef. This is the basic thing. So he is very right. So the thing is, I'm really proud for everyone who join us. We are very, stable. So today we join. Hello. Yes, we are hearing you. Yes, sir, you are audible. Please carry on. Yeah. Please carry on. Okay. So everything is good. It's fine. And what the competition is today, I saw all the videos and everything. I really appreciate that people are very interested to join us and send the videos and how to food and everything. I really appreciate. It's very appreciate. So what should I share with you all? Hello. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. We are hearing. Yeah, I'm audible. Okay. Yes, okay. sir. Yes, sir. Definitely. Okay. So the thing is the same thing. We just want to listen your journey, sir. Sorry. You want to listen my journey? We just want to listen very carefully to yes, you. sir. Definitely. Yeah. Oh my God. My journey started like 1995. I started my career in 1995 from Ashoka Hotel. Actually, I don't want to become a chef, actually. But after I heard about my father was a master chef in Hotel Kutab. So that's why my name is Kutab. So when I joined the hotel, then I see my father name is very famous in hotel industry. He is a master chef. He's become very good chef and very natural person. So these feelings automatically come in my side, in my nature. Then I become a chef. I start my career from Ashoka Hotel, and 3 years I done my diploma. Then I come to Germany as a chef. Then I joined in Germany is Indian restaurant. We awarded as a best foreigner restaurant in Germany. So I worked there in 7 years. So then I come to India. I joined Joravar Kalra. If you heard about it, Jix Kalra is a famous journalist. Then we started with the Punjab Grill restaurant.
and with the Street Food of India, Light Bite Food Company, we joined. I worked with them 4 years. Then I come back to USA. I mean, this hotel industry is a very, very famous right now. When I started, the hotel industry was like not so famous like right now. But I appreciate for everyone like you. You have a very good team. The Chef's Choice magazine and more. I mean, really appreciate for everyone you doing join and doing the famous things. I mean, the thing is right now that all the companies, all chefs, like Izzat Hussain is said, is very well. He said the basic thing is very important for everyone. How he said the fat is very important. Where is not a fat? This is also very right. So I just want to say for the newcomers who want to join as a chef, as a training, as a starter joining as a hospitality. So they have to think about it. It's not an easy way to become a chef. It's very hard work, but you have to be patient and be professional if you want to become a chef. That's it. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing your journey, for your views, and encouraging our students and our team also. And our third guest is Mr. Devashish Pandey, Chef Devashish Pandey, and we welcome you, sir. And you are also coordinating with Nitesh sir to organizing this event. We are thankful to you, sir. And sir was an assistant professor in a lovely professional university in the Department of Hospitality. And after that, now he has joined Unison University in Uttarakhand. Am I right, sir? Yes, yes, yes. Right. Thank you, You're sir. very right. Now it's over to you. Now it's over to you, sir. We want to listen to your words from you, sir. Thank you so much, ma'am. As I told you, you gave me my introduction. It was very much right. Studied in Chennai, and then I started working with Hyatt Regency Chennai. After that, I worked with Movenpick Hotel Doha, Qatar. And then I worked as a restaurant consultant also. I worked under Indian Railway Catering. And then later on, I moved to academics. And my first job as academician was with International Institute of Hotel Management. They were having a IAM Institute of Hotel Management in Guwahati. So I joined over there as a food production faculty. After that, I joined a lovely professional university. Then I joined a BFIT group of institution as head of department. And now I am working with IMS Unison University, Dehradun. So the contest which was conducted or which is conducted by DAV, we have seen lots of videos. और उन वीडियोस में क्या है, वीडियोस में जो रीजनल क्यूजीन है और जो लोकल जो फूड है उसको शोकेस किया है. उसमें सारे एज कैटेगरी के लोग हैं. जो हमने वीडियो को पूरा थॉरोली देखा है तो उसमें लोगों ने इंटरेस्ट लिया है. सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट की. और कुकिंग तो बेसिक कहाँ से स्टार्ट होती है, वो हमारे घर के किचन से ही स्टार्ट होती है. तो उसमें मैक्सिमम होम शेफ्स हैं, होम कुक्स जिसे हम बोलते हैं. तो उन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है. कैमरे को फेस करना भी एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव की बात है कि हर कोई बंदा जो है वो कैमरा फेस नहीं कर सकता, और जो कुकिंग कर रहा है और उसको कैमरे में कैप्चर भी करना है, ये सबसे बड़ी बात है. और ये बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम भी कैप्चर किया हुआ है और वो बहुत अच्छा किया हुआ है. उन्होंने अपनी जो भी प्रोसीजर था, जो भी प्रिपरेशन मेथड था, उनको समझाया भी है. तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स को, विनर्स. और इसमें होटल जो हमारे जो कलनरी कॉम्पिटिशन होते हैं ना, इसमें विनर्स और कोई लूज नहीं करता है. सारे लोग विनर्स है इसमें. क्यों? बिकॉज जो आपको पता है वो आप दूसरों को भी तो सिखा रहे हैं. आप मुझे सिखा रहे हैं. Yeah, Devashish, you're very right now. Really very मैं right. देखता हूँ कि कंपटीशन ना सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं होता है. मैं कलनरी कंपटीशन को कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं. बिकॉज कुकिंग सिर्फ नॉलेज के लिए है. कुकिंग आपको भी नॉलेज देगा, मुझे भी नॉलेज देगा, सबको नॉलेज देगा. तो इसमें हार जीत तो there is no end. You can learn all your life because there is no end.
ये तो you are क्राइटेरिया है जो हमें फिल करनी है कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड देना है और अप्रिशिएट करना है। लेकिन वैसे culinary के जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें हम कोई भी किसी भी तरीके के हम किसी को भी ऊपर नीचे नहीं आंक सकते हैं। तो It's just a सबका number. एक अपना एक्सपीरियंस है। Just a number. It's just a number. Yeah, it's just a number, but everybody Yeah. have experience and talent. जो उन्होंने शो Yes, किया yes, yes. वो अप्रिशिएट वाकई में बहुत ही जी, काबिल जी, जी। है कि हमने ये कंपटीशन ऑनलाइन डाला है, लेकिन उसमें से कितने लोग आए तो वो अप्रिशिएट मतलब करते हैं ना, उस जगह पर पहुंचे जी। तो सही है तो सही, तो वो सबसे अच्छी बात है। और दूसरा कि कोई ऊपर नीचे नहीं होता, सबका अपना टैलेंट है, नहीं। सबकी I रेसिपी do है। agree. I also है कि do नहीं? agree with शेफ कि मतलब जो है ना, तो शेफ ने बोला कि हमने इससे पहले बोला था कि हम कभी किसी को ये नहीं कर सकते कि वो कंपटीशन में आए हैं। दे आर प्रेजेंटिंग देते हैं शो केसिंग देमसेल्फ, है ना, तो वो शो केस भी करने में एवरीवन इज इक्वल और वही वो बिल्कुल अपना देता है, वो अपना बिल्कुल बेस्ट देता है। ये बात होता है कि चूंकि मतलब दैट मींस मतलब इफ यू आर द एथलीट फीट तो एवरीबॉडी इज रनिंग। अब ये कि जो अच्छा रन कर पाया वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, लेकिन रनिंग में कोई किसी का वो नहीं है कि आप भी कह सकते कोई रन नहीं कर पा रहा है। Everybody same like that. Everybody is speaking over here, and I would like to appreciate, but I would like to repeat your words, Debashish Pandey and yours. Okay, everyone is appreciable who has participated in this. I do not want to use the word of competition. Who has participated over here, and everyone has participated. और उनकी जितनी भी चीजें हैं, जिन लोग को प्राइस मिलना है उनको तो मिलना है, जिनको नहीं मिलना है उनको सोचना उनको थोड़ी सी और मेहनत करनी है और उनको कुछ और नया लाना है। हमने भी मतलब देखा कि इसके अंदर एक जो है किसी पार्टिसिपेंट्स ने उन जो लॉस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जैसे गोंद है, अगर हम किसी से बात करें तो वो गोंद की बात हो रही है, जो गम है, तो वो गोंद को लोगों ने यूज करना ही बंद कर दिया है। अब लोग जानते ही नहीं, आज की नई जनरेशन जानती ही नहीं कि गोंद क्या चीज होती है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो whenever you are talking about some immunity booster things, so मतलब everybody goes with the dry fruits कि बादाम है और ये चीज ये है और पिस्ता है और इसकी तरफ भाग रहे हैं। ये भी नहीं मालूम कि दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी सपोर्टिंग होते हैं, दे आर आल्सो द इम्यूनिटी बूस्टर्स। सो मतलब बहुत ही चीजें हम लोग बोलते जा रहे हैं। लॉन्ग पेपर है, आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर जितेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये गोंद तो वाकई में लोग भूल चुके थे, लोग भूल चुके थे। मैंने भी जब ये वीडियो देखी तो मेरे को अजीब सा लगा कि वाकई में मैं गोंद ही सुन रहा हूँ या कुछ और सुन रहा हूँ। बल्कि मैंने सुना है अभी सर मैंने जो शेफ मैंने भी एक वो अभी मैंने अपनी रेसिपी तैयार की थी और उसके अंदर गोंद के लड्डू, उसमें ट्विस्ट ये है कि लोग पहले आटे से बनाते थे, इसमें कॉम्पिटिटर ने भी बनाया, इसके अंदर आटे से बनाया, एंड आई यूज अ मल्टीग्रेन। तो मल्टीग्रेन इज वेरी बेनिफिशियल। तो मतलब इट इज ऑल दैट कि मतलब विदाउट द ड्राई फ्रूट्स ओवर देयर। तो मल्टीग्रेन आटा है जिसमें रेगी भी है और उससे मतलब जौ भी है, इस तरह की तमाम चीजें हैं, मल्टीग्रेन आटा। देन गोंद, तो गोंद जो है वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है कि हमने उसको खाना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से विटामिन डी की डिफिशियंसी बढ़ गई। तो इफ यू वांट टू मतलब यूज फॉर विटामिन डी डिफिशियंसी, गो विद द गोंद। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि मतलब गोंद अब आपकी बात वही हो गया ना, अभी गोंद की जगह लोग कॉन्स्टाल करने लग गए ना, गाढ़ा करने के लिए, टाइट करने के लिए। बट उस टाइम गोंद बहुत अच्छी चीज थी, इज नेचुरल। तो जो लॉस्ट रेसिपीज हैं और लॉस्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रीयूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज कैरी ऑन। और हाँ, और साथ ही में जो हमारे जजेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शेफ इज्जत हुसैन जी, सर को तो मैं जब भी फोन करता हूँ तो सर से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और इसीलिए मैंने सोचा जब मैं सीख सकता हूँ तो बाकी सब भी सीख सकते हैं। तो इसीलिए शेफ डॉक्टर इज्जत हुसैन जी को हम लोगों ने अप्रोच किया और सर ने अपना टाइम निकाला, गाइडेंस दी है, मेंटरशिप दी है। सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही में मास्टर शेफ कुतुब सिंह नेगी जी जो हमें यूएसए से ज्वाइन कर रहे हैं, और सर को भी जब मैंने पहली बार फोन किया तो सर ने बोला क्यों नहीं, आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो ये जो वर्ड है, जो स्टेटमेंट है, ये बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए भी, सभी के लिए, क्योंकि मोटिवेशन आता है।
साथ ही में शेफ चॉइस मैगजीन और WCCF वर्ल्ड शेफ चॉइस फेडरेशन की तरफ से हमारे यहाँ पर जो MD हैं शेफ चॉइस मैगजीन के मिस्टर जतेंद्र धीर जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो भी एडवर्टीजमेंट और जो भी न्यूज पेपर में आपके जो भी न्यूज आती हैं वो सर का एक इनिशिएटिव है। सर ने बहुत सपोर्ट किया हुआ है। जितने भी अपकमिंग शेफ हैं, जितने भी एकेडमिशियन प्रोफेशनल शेफ हैं, सबको प्रमोट करने के लिए सर ने एक पहल स्टार्ट की थी, शेफ चॉइस मैगजीन, जो सबकी मैगजीन है। आज इंडिया की सबसे मैगजीन में से एक है शेफ चॉइस मैगजीन। और हमारा डेली ई कन्नरी न्यूज़पेपर भी डेली जितने भी हमारे शेफ की एक्टिविटी होती है, होटल की एक्टिविटी होती है, उनको भी कवर करता है। तो थैंक यू सो मच जतेंद्र धीर सर और DAV कॉलेज का, डेविड के पूरी मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ। इतना अच्छा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और सभी लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे आज लेकर आए हुए हैं और बहुत कुछ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहे हैं अभी, जो बहुत एक अच्छी बात है कि फ्रूटफुल एक सेशन हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर। फ्यू मिनट्स बैक आई डिडंट वांट कि आप लोगों की ये डिस्कशन खत्म हो because it was a very fruitful and it was very useful discussion. A lot of things we are coming to know and a lot of knowledge we are gaining from your discussion. Let us plan a everyday session with all of you. It will be definitely valuable. It will be definitely beneficial for everyone. I must say thanks to all of you, sir, joining with us. And now I would like to request the HOD of our Hospitality and Tourism Department, Mr. Nitish, to kindly join us and share a few words with us. Thanks our judges to joining us and for joining us, and moreover, he'll also declare the results of which has been already compiled for the DAV Super Chef. Over to Nitish sir. I hope I'm audible. Am I audible? Yes. Okay. Okay. So thank you, Sarabjot ma'am, and Department of Hotel Management at David College heartily welcomes to all the jury members and of course judges and the participants, which are most important for us. So I express my sincere gratitude and thanks to all on this special occasion, that is World Tourism Day 27 September 2020. So we have started this contest and we put 3 events in this event. First was a very ambitious event from by my side or from David College, that is DAV Super Chef Season 1. The second one was dancing and the third one was painting. So थोड़ा जो DAV Super Chef है उसके बारे में मैं मतलब कुछ बताना चाहूँगा। I have started, मैंने ये चीज जो सोची थी कि DAV एक मैंने पहले एक कंपटीशन करवाना है, कंपटीशन इन द सेंस कि ओके आई वांट टू ब्रिंग द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट्स, फ्रॉम इंडिया स्टेट्स, कि वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और हमें कुछ नया सीखने को मिले। सो मेरा जो इस DAV सुपर शेफ को, इस थीम को शुरू करने का एक ये था, वो यही था कि जो हमारी पुरानी रेसिपीज हैं, जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं, जो कभी मेरी दादी माँ बनाती थी या कभी मैंने अपनी नानी के घर में कभी बचपन में खाई थी, तो अभी इस सिनेरियो में मुझे लगा कि हम उनको कहीं भूल चुके हैं, ना कोई उनके बारे में बात करता है। अगर टीवी पे मैं देखता हूँ या किसी फूड चैनल पे मैं देखता हूँ तो वही मुझे पनीर से रिलेटेड then the same thing जो हमारे पास चलती आ रही है। सो ये स्टार्ट करने का मेरा एक इसके पीछे यही था, ताकि जो लोग घरों में अपनी ट्रेडिशनल डिशेस जानते हैं वो लोग उनकी जो डिशेस हैं, उनकी जो रेसिपीज हैं वो सामने आए, उन लोगों को रिकग्निशन मिले और ऑफ कोर्स उस रिकग्निशन से और उन रेसिपीज से जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बडिंग शेफ हैं,
और जो ऑल ओवर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी इनको अब आगे जब देखेंगे फ्यूचर में, when we are just going to put on air those recipes through our different social platforms, so जब वो देखेंगे तो उनको कुछ सीखने को मिलेगा, उनको कुछ नया, कुछ जो हमारे पास पुराना, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा पुराना ancestors, तो ये था. So we are getting very good response. We got 386 all over India, all over event की हमने 386 हमें entries मिली हैं, जिनमें से cooking की हमारे पास 63 entries आई थी. So उनमें से हमने छाट के जो best 25 थी वो हमने निकाली, and उसके ऊपर फिर judges has made their judgment. So yes, thank you very much, Chef Dr. इज्जत हुसैन. आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, एंड काफ़ी आपके बारे में काफ़ी सुना भी है, आपके बारे में काफ़ी पढ़ा भी. देवाशीष सर कई बार उन्होंने आपका जिक्र भी किया है. So I'm really very privileged कि आप मेरे हमारे इस कॉन्टेस्ट में आए और इस इवेंट में आए, और आपने हमें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जज किया. It's really honor for us. And then second, Mr. Kutub. मैं भी आपको नीतीश जी, मैं भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और हंटिंग कर रहे हैं आप लोग, उसके अंदर हमारे सामने टैलेंट्स भी निकल करके आ रहे हैं, और लॉस्ट रेसिपीज भी हमारे सामने आ रही हैं. और ठीक है, प्लीज फील फ्री टू कॉल मी. एंड शेफ कुतुब, आपसे भी कि प्लीज, मतलब इट इज वेरी गुड टू मी कि मतलब वी आर कनेक्टिंग यू, और कितने अच्छे शेफ से मुलाकात हो रही है. मेरी पहली बात. सेम टू यू. मैं तो आपसे बात करने की बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल्कुल सर, मेरा नंबर आप देवाशीष से ले लीजिए. देवाशीष, मतलब देवाशीष, प्लीज शेयर माय नंबर. नितेश, यस सर. थिंक ऐसी है कि देखो, हम भले ही एक फील्ड से हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सालों बाद मिलते हैं या पहली बार मिलते हैं. जैसे आज मैं डॉक्टर इजाद हुसैन जी से मिल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिल. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. कुछ मुझे हो सकता है, देखो सीखना कभी खत्म नहीं होता है, पढ़ाई खत्म नहीं होती है, तो सीखना कभी खत्म नहीं होता. अगर मैंने ये कह दिया कि आज मैं बेस्ट हूँ या परफेक्ट हूँ, तो ये मेरी गलत सोच है, क्योंकि पढ़ाई वहीं से खत्म है. कुकिंग तो एक ऐसी लाइन है कि शायद इसका तो एंड ही नहीं है. दुनिया किसी भी कोने में चले जाओ, किसी स्टेट में, किसी सिटी में, आपको नमक मिर्च का फर्क समझ आ जाएगा. बिल्कुल, सबका अलग स्वाद है और अच्छा लगता है. I just want to मतलब say one thing कि अगर आप कहीं भी जाते हैं ना, आप देखिए ना कि कोई भी एक इंग्रेडिएंट है, आप उसको ले लीजिए. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कितनी तरीके से वो पकाया जा रहा है. सपोज आप एक कोई भी चीज ले लीजिए, मतलब आलू ले लीजिए. आलू को हम किस तरह से इंडियंस किस तरह बना रहे हैं, है ना. अमेरिकन उसको फ्राइड राइस बना करके, उसको फ्रेंच राइस बना के खा रहे हैं. किस तरह सिंपल, कितना वही बिल्कुल सिंपल से. आपकी सही बात. आलू क्या है? हमारे लिए आलू मटर है, ठीक है. किसी के लिए फ्रेंच फ्राई है, किसी के लिए मैश पोटैटो है. जी. तो कितने तरीके से खा रहे हैं, तो वो सीखने का कभी नहीं हो सकता. एंड प्लीज लेट मी से वन मोर सेंटेंस टू यू कि मैं डॉक्टर से शेफ बनाऊं. I was a practicing doctor and my OPD was the 200 patient a day. मतलब ये नहीं कि मतलब कोई मैं फ्लॉप डॉक्टर रहूंगा, कुछ ऐसा रहूं, लेकिन ये मेरा जो उसकी हॉबी थी. आई बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ लखनऊ, सो मतलब फूड वाज इन माय ब्लड. तो मैंने इसमें देखा कि मैंने बहुत सी चीजें देखी हमारे खाने में, जितना काम होना चाहिए था, यानी आपको जो खाना होता है ना, यही बीमारियां पैदा करता है. तो आपको वहां पे जाके काम करना है कि जहां पे बीमारियां ना पैदा हो. तो शेफ इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन अ डॉक्टर, है ना. राइट. तो मतलब अगर if you are not doing the right work, that means you are supporting to the medical industry rather than your own industry. Because सारी बीमारी पेट से ही शुरू होती है. Right. And if you are not taking the right food, और पेट कहाँ से चलता है? खाने से. Right. तो अगर खाना सही नहीं है तो सारी बीमारी आएंगी. खाना सही है तो आपको कोई बीमारी नहीं. मेरा कहना ये है ना शेफ, I just want to say this. Chef, I want to say this कि if you are not doing your right job, that means you are supporting to the medical industry rather than your own industry. Yeah, right.
राइट तो ना? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें डॉक्टर के साथ शेफ मिल गया। राइट राइट। तो बस वही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी चीजों को शेयर करूँ, और आई एम वेरी फ्री टू शेयर। आई डोंट हैव एनी पोटली। तो मतलब देवाशीष जानते हैं मेरे बारे में, मैं सिखाना ही पसंद करता हूँ। मैं यार दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, सिखाना ही लेक्चर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हाँ, तो आपको मैं अपनी उसको अपनी हिस्ट्री बताऊं तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर ट्रेनिंग 90s की जी बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसे हाँ जी स्टेप होते थे कि जो जेब में मसाला लाते थे और हमें दिखाते तक नहीं थे, और जब उन्होंने राइट खाने में मसाला डालना होता था हमें बोलते थे बेटा वहां स्टोर से नमक लेके आ जा, कोल्ड रूम यस से शेफ, लेके आ यस शेफ, जा, हमें मैंने Very बताते थे, much right. वापिस आते मैंने थे ऐसे ही जब होटल होटल में मैंने खाना ऐसे रेडी ही होता सीखा था, है। हम उनको मेरे पूछते जो थे, शेफ थे शायद मेरे हमारी जो तो शेफ थे होती थी। हाँ जी हाँ जी हाँ, मेरे जो शेफ थे वो क्या करते थे कि जब भी वो आएंगे, ओके नितेश बेटा ये तैयार करो, मैंने सारा मिज़ा तैयार किया, सारा सब कुछ हाँ जी हाँ जी हाँ तैयार जी किया, और जब वो एक्चुअल में मतलब करने की बारी आएगी, देन ही टेक आउट सम स्मॉल स्मॉल मतलब वो डिब्बियां, और वो हाँ उस बिल्कुल बिल्कुल, सारे जेब में फटाफट वो डालेंगे। हाँ केवड़ा वाटर और केसर और इलायची हाँ पाउडर, जावित्री पाउडर, जेब उस टाइम हमें तो पता हाँ, चल रहा है वो जावित्री पाउडर था, लेकिन उस टाइम तो यस हमारे लिए यस, वो मैजिक था, हमें पता ही नहीं था वो है हाँ। क्या। तो वो हाँ खुद को महसूस करना पड़ता था, अरे इसकी खुशबू है, ये होगा क्या। फिर जब शेफ से पूछो तो शेफ, अरे कुछ नहीं, ये जादू है। कुछ नहीं सो है कुछ नहीं दिस है, इज नमक है, नमक हाँ नमक डाला है तो जा हाँ नमक ये लेके आ तो हाँ हाँ। बिल्कुल होता सो था वो तो दिस इज वो हाउ टाइम वी पे, मैंने लेकिन उसी मैंने आई एम लेकिन मैं ब्रेकिंग दैट ट्रेडिशन। आई एम लेकिन ब्रेकिंग मैं दैट ट्रेडिशन, हाँ जी whatever I have learned. So I believe in the sharing. So I'm sharing. क्या मतलब my book is there. इज्जत का खाना is very much there. I put the गरम मसाला, और मतलब उसी गरम मसाले की जो रेसिपी है वो है उसमें। व्हाट इज गरम इसी मसाला? अच्छा, बेसिक में एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जिन लोगों ने मेरी बुक पढ़ी है वो जानते होंगे। जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी, अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि व्हाट इज गरम मसाला, तो दे आर ऑलवेज आंसरिंग मी कि अरे इसमें हमने व्हाट इज गरम विद गरम मसाला। तो उनसे पूछते तो कोई लौंग को बता देता है, कोई कुछ को बता देता है, लेकिन आई जस्ट वांट टू शेयर। शेफ, आर यू लिसनिंग मी? हेलो? यस 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 Very यस much यस। listening, Yes, sir. I just We want are, to we are reveal here. you मतलब what is garam masala. Garam is not meat Yes, sir, who you are are audible. celsius or We are just Fahrenheit. listening to you. Okay, Yes, sir. sorry. सर Garam masala is कैन यू not meat. हाँ Garam या कैन यू masala is रिपीट? not related to the Celsius or Fahrenheit or any other तासीर। जैसे लोग कहते हैं ना उसकी तासीर गर्म होती, कुछ नहीं। गरम इज ए उर्दू वर्ड, और वो उसका गरम के माने एक टॉप के भी होते हैं। जैसे आपसे कहा ना, खबर आज गरम है, तो आप उसको कितनी सेल्सियस में समझेंगे? आप ओके कितनी सेल्सियस समझ होंगे ना। तो गरम मीन्स की टॉप स्पाइस ऑफ दी योर इंग्रेडिएंट। सपोज यू आर कुकिंग द अरबी, ओके ना। अरबी अगर आप पका रहे हैं, घुइयां जो होती है उसको अगर आप पका रहे हैं, तो उसके अंदर हर घर में अजवाइन डाली जाती है। तो अजवाइन इज द गरम मसाला ऑफ दैट अरबी। तो प्लीज इसको आप गरम मसाले में कोई भी अगर आपको पड़ता है तो उसको आपको कंफ्यूज कर रहा है कि इसमें लौंग गरम है या कोई दूसरी चीज गरम है या कुछ गरम है। गरम डजंट मीन गरम मीन्स द टॉप स्पाइस ऑफ द इंग्रेडिएंट। यस ओके, राइट हाँ। राइट। तो ये मैं आपको एक सर चीज मुझे और ये शेयर मेरे करने को को बहुत ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने जो बात शेयर करी है, इट्स रियली जी वेरी नाइस। आई मीन कभी कभी आज कुछ चीजें बहुत ऐसी लोगों के होती हैं, जहन, हमें इस जगह पहुंचने पे भी कुछ चीजों का नॉलेज नहीं होता है, तो इसलिए मैं कह रहा जी हूँ कि जी नॉलेज भी खत्म नहीं होता है, नॉलेज तो आप जी जिंदगी जी, भर ले सकते हैं। तो वही बिल्कुल अभी बिल्कुल। मैं अभी वही बात कर रहा था जिन्होंने बात करी है कि हम लोग अब उस पोजीशन में हैं, अगर हमारे पास कोई नॉलेज है या कुछ भी आता हाँ है, अगर मैं उसको छुपाता हूँ अपने स्टूडेंट से, तो वो मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी है। राइट हमें नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, अगर मुझे कुछ आता है सही तरीका या सही चीज, तो मुझे उसको देना चाहिए ताकि वो चीज आगे जाए और लोग उसको सीख जी के जी, और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल हमारे उस बिल्कुल। जमाने में क्या होता था, लोग छुपाते थे, जी वो चीज अच्छी नहीं थी। लेकिन मैं आज अप्रिशिएट करता हूँ, आज एजाज हुसैन जी ने जो हमारे साथ शेयर किया है, तो बहुत अच्छी बात है, और शेयर ही सबसे अच्छी चीज है इसमें, क्योंकि जब तक हम शेयर नहीं करेंगे हमारे स्टूडेंट सही चीज पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल शेयरिंग सबसे बेस्ट चीज है, अपना नॉलेज शेयर कीजिए। हम लोग अभी उस पोजीशन में राइट हम टीचर हैं, और अगर टीचर शेयर नहीं करेगा तो स्टूडेंट सीखेगा कहाँ से? राइट राइट राइट। है कि नहीं? अगर राइट टीचर बोलेगा राइट तेरे को टू का टेबल नहीं आता है, तो सबसे बेकार है। अरे तो टीचर इसलिए तो वो स्टूडेंट है क्योंकि वो सीखने आया है। अगर आप बोल रहे हो तुझे नहीं आता है, तो ये गलत बात है। अरे आपको सिखाना उसका काम है,
उसको नहीं Yes. आता है तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, उसको नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी सिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई डू एग्री विद यू। यार ही इज अ I'm स्टूडेंट, very much वो agree तो with you. छोटा है ना, Yes. उसको क्या मालूम है, आपने ही तो सिखाना है। और आप बोले तुझे आता ही नहीं है, तू बेकार है, तो ये गलत। तो हम अच्छे टीचर नहीं है इसका मतलब। तो हमें बिल्कुल अच्छे टीचर बनने का मतलब है हमें शेयर करना चाहिए, और जो कमजोर है उसको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। Exactly. Being a professor or being a teacher, I also agree with the chef कि yes, हमें हमेशा उन लोगों पे काम करना चाहिए जो कमजोर है, जो 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 जिनको जरूरत है हमारी एक्चुअल में। जो लोग थोड़े से ज्यादा मतलब कम टाइम पे पिकअप कर पाते हैं, या उन पे हमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। और बीइंग अ डेविएट या बीइंग अ डीएवी, हमारी यही कोशिश रहती है पूरे थ्रू आउट द मतलब हमारे जहाँ पर भी कैंपसेस हैं या जहाँ पर भी हमारी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन दें, ना कि एजुकेशन के नाम पे हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करें और उसके बाद फिर हम उनको इस सोसाइटी में बाहर छोड़ दें कि ओके नाउ यू कम्पीट। और नहीं, ऐसा हमारे पास ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड वी आर ऑलवेज बीइंग अ डेविएट। हम लोग हमेशा एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए और क्वालिटी नॉलेज देने के लिए वी आर ऑलवेज प्रेजेंट। आपने नितेश जी बहुत अच्छी बात बोली है। मैं यही कहूंगा, आप ऐसा जो भी सेमिनार है, प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो टीचिंग का हो या कोई भी कोर्स हो, कोई भी चीज की, कोई भी मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए हो, आई विल ऑलवेज विद यू। तो आप लोग बहुत अच्छा कदम ले रहे हैं, और प्लीज इसको कैरी ऑन, इसको वाकई में जैसा हम लोग आज बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा ना हो कि ये कटने के बाद सब खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली मैंने इसको सीजन 1 जब मैंने इसको शुरू किया था तो मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि मेरे वहां तक गया ही नहीं मेरा दिमाग कि मैं इसको वहां तक। बट जब मैंने इसको शुरू कर दिया, मैंने सीजन 1 इसीलिए इसको नाम दिया कि सीजन 2 भी आएगा, सीजन 3 भी आएगा, सीजन 4। इट्स लाइक कि हाँ नितेश जी, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक टीवी को वीसीआर, तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पुराना होता था। टीवी को जब वीसीआर से कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है? केबल। राइट। तो आप लोग वो केबल हैं, आप लोग नहीं होंगे तो कनेक्ट नहीं हो सकता ना। तो आप लोग की सबको जरूरत है, तो आप लोग को हमेशा ऑन रहना पड़ेगा और ऐसे ही प्रोग्राम करने पड़ेंगे, तभी हम या दूसरे लोग या सब लोग हम कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोग का जो काम है वो हम लोग को कनेक्ट करना है दूसरे लोगों से, आप लोगों से। तो आप लोग एक उस केबल का काम कर रहे हैं जो टीवी को वीसीआर से मान लो या टीवी को सीडी प्लेयर से मान लो, कि एक केबल जो है जो कनेक्ट करती है। और केबल एक ऐसी चीज है जो हर चीज को कनेक्ट करती है। बिना केबल के तो मोबाइल भी नहीं चलता है, मोबाइल भी बंद हो जाएगा कुछ घंटों बाद। तो यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज कैरी ऑन। आपको कोई भी चीज की कभी भी मेरे लायक कोई काम हो तो प्लीज मुझे बताइए, बट प्लीज कैरी ऑन। इस चीज को हमेशा जागरूक रखिए और स्पीड रखिए ऐसी। डेफिनेटली शेफ, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है और अभी मुझे इस फील्ड में मेरे को बहुत ज्यादा काम करना है। आई जस्ट वांट टू, मेरे एक गोल है कि मैं इस इंडस्ट्री को ऐसे शेफ्स, ऐसे मतलब होनहार शेफ्स देना चाहता हूँ जो मतलब वाकई में हमारे अंदर जो टैलेंट है या जो हमारा फूड है या वो वर्ल्ड फेमस रहे और रिकग्निशन मिले उसे। और वैसे ही जो हमारे अभी आने वाले जो यंग शेफ्स हैं, तो उनके लिए अभी मुझे बहुत काम करना है। आई हैव जस्ट मैंने शायद एक छोटा सा एक पायदान रखा है सीढ़ियां चढ़ने के लिए अभी शायद, लेकिन सीढ़ियां अभी काफी हैं। और डेफिनेटली I'll reach one day on the top of this thing. So I'm really सर, आपने बीज तो रख दिया है ना, अब इसमें फल भी आएगा और ये पौधा बड़ा भी होगा। बिल्कुल। और हम सबको छाया भी देगा। एक चीज मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, WCCF और शेफ चॉइस मैगजीन की तरफ से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है कुकिंग कंपटीशन में, डीएवी की तरफ से तो उनको सर्टिफिकेट जाएंगे। साथ ही में एडिशनल एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट शेफ चॉइस मैगजीन की तरफ से भी सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा, जो उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे दे दिया जाएगा। और साथ ही में सारी वीडियो और सारे वीडियोस जो आए हुए हैं उन्हें
और सारे वीडियोस जो कि कंटेस्टेंट्स ने भेजी हुई है हम लोगों को, सारे वीडियोस को यूट्यूब में शेफ चॉइस मैगजीन का यूट्यूब चैनल है उससे, और शेफ चॉइस मैगजीन के फेसबुक पेज से, और साथ में डेविएट के एचएम पेज से भी, और डीएवी के जो और अदर पेज है वहां से भी वो बाद में पब्लिश की जाएंगी ताकि सारे लोगों तक वो पहुंचे। तो ये पहल हम एक करेंगे। हाँ, Very लेकिन nice. देवाशीष बहुत थैंक अच्छी यू। बात बोली है आपने, बहुत बहुत ही अच्छी बात बोली है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो लोग को अवार्ड नहीं मिला या जो विनर नहीं है उनको डिसअपॉइंट नहीं होगा। नहीं, वो इसलिए हम बहुत सबके लिए Yes, exactly. बहुत अच्छा किया आपने, Thank you, ये thank बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि हमें सबको इंक्रीज करना है ना, सिर्फ हमें चूज करके हम 3 या 4 आदमी को आगे नहीं लेके जाना है, हमें उन वो सारे आदमी चाहिए और उनसे ज्यादा आदमी चाहिए जिनके अंदर टैलेंट है जी, और जो डर की वजह से छुपे हुए हैं, वो डरे नहीं, आगे आए But और this अपना is, टैलेंट दिखाएं। yeah, this is just not a competition. This is something where we want all the people to participate and all the people to show their skills. जिन लोगों ने कुछ बनाया उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी अगर व्यूअर्स अगर हमारे देख रहे हैं या फ्यूचर में अगर देखेंगे तो मैं उन सभी को यही कहना चाहूंगा, यू ऑल आर द विनर्स। दिस इज जस्ट एक मैंने ये ऑर्गेनाइज किया है, हमने ये ऑर्गेनाइज किया है इस चीज के लिए ताकि आप एक दूसरे से ही सीखें। कहाँ मेरे पास एक लखनऊ से मेरे पास रेसिपी है, महाराष्ट्र से मेरे पास रेसिपी है। आई गॉट द पीपल एंट्रीज फ्रॉम द बांग्लादेश से भी उनकी एंट्री थी, असम, शिलोंग। सो ये जब रेसिपीज जब हम ऑन एयर करेंगे, एज देवाशीष शेफ ने जैसे कहा, हमने ये डिसाइड किया था कि इनके जो वीडियोस हैं हम वो ऑन एयर करेंगे, अपना एक उसको थोड़ा सा अच्छे से ये करके ताकि लोगों को थोड़ा प्लेजेंट लगे देखने में भी इन फ्यूचर, और वो चलता रहे हमारे पास। सो दिस इज जस्ट हमारा यही एक मोटिव है कि जो पुरानी रेसिपीज हैं वो लोगों तक पहुंचे, लोग एक दूसरे से सीखें, एंड दैट्स ऑल अबाउट ऑल द कुकिंग। मैंने कुकिंग इसलिए सीखी थी, मैंने कुकिंग इसलिए ये करना शुरू कि ये मेरा प्रोफेशन, मैंने इसको अपना प्रोफेशन सोच के नहीं किया था। मैं 14-15 साल की उम्र से मैंने अपने घर में कुकिंग करना शुरू कर दी थी, बिकॉज आई लव फूड। मुझे इसके अलावा और कुछ मतलब चाहिए नहीं होता था। खेल के आऊंगा, ओके ठीक है, आई नीड टू ईट समथिंग। मॉम अगर बिजी है, इफ शी इज वर्किंग, और कोई भी नहीं है, ओके ठीक है, ठीक खुद ही बनाना शुरू कर दिया। उस वक्त पे रेसिपीज नहीं होती थी, उस वक्त पे कुछ नहीं, सिर्फ मॉम को देखा है एक बार कि ओके उन्होंने इडली डोसा सांभर मेरे को बहुत अच्छा लगता था। सो उनको मैंने एक बार देखा बनाते हुए, उनसे पूछा मॉम कैसे बनाते हैं। तीसरी बार जब वो मेरे सामने बना रही थी, आई वॉज स्टैंडिंग विद हर, और मैंने वो लैडल पकड़ा और मैंने उनको बोला कि हाँ नहीं, मुझे बताओ ये गोल कैसे बन रहा है, या मुझे बताओ ये जल क्यों नहीं रहा है। और उस वक्त पे मेरी मॉम जो थी, उस वक्त पे तो उन्होंने नॉन स्टिक पैन भी यूज नहीं किया था, जो एक आयरन का जो एक जो तवा होता है उस पे शी वाज मेकिंग डोसा। सो दिस इज माय हॉबी, दिस इज माय यू नो, एक मेरे अंदर वो एक ये रहती है, मैं स्ट्रेस फील करता हूँ, आई स्टार्ट कुकिंग। मेरे को कुछ और अगर ये करना है, आई नेवर गो फॉर द नेटफ्लिक्स या कुछ नहीं, मैं यूट्यूब पे नई रेसिपीज नई चीजें देखता रहता हूँ। तो दिस इज व्हाट आई वांट कि आप एक बार कुकिंग करके देखिए, आपको स्ट्रेस है, आप कुकिंग करके देखिए, आप भूल जाएंगे सब कुछ। आपकी 2 बात से मुझे वाकई में 2 चीजें याद आई हैं, एक माइक्रोवेव और एक नॉन स्टिक पैन। ये पहले नहीं होता था दोनों चीज, लेकिन तब भी कुकिंग होती थी। रेस्टोरेंट के अंदर फ्रेश कबाब जाते थे तंदूर से निकल के, आज माइक्रोवेव से जाते हैं। जी बिल्कुल पक्के जाते थे, कभी कंप्लेंट नहीं आती थी कि रॉ है, कच्चा है। नहीं होता था, ग्राइंडर भी नहीं होता था, सब बट्टा होता था। हमारे हाथ दुख जाते थे, हमें शेफ देता था जाओ पीस के आओ इसको, तो पीस रहे हम गरम मसाला। बट वो शायद उसी नॉलेज की वजह से, शायद मेहनत की वजह से आज हम शायद यहाँ तक पहुंच पाए हैं। राइट। अगर हमें भी आसान तरीका मिलता तो फिर हम भी आसान तरीका चुन के शायद कहीं और होते। तो जब मेहनत वाला तरीका हमने चुना और कुछ करके निकले हैं, तो शायद यहाँ तक पहुंच पाए हैं। वो उनकी मेहनत, शायद उनकी वजह से हम लोग यहाँ पहुंच पाए हैं। मैं तो साफ कहूंगा ITDC में बहुत अच्छे शेफ थे, बहुत अच्छे शेफ, बहुत अच्छे। कुंदन सिंह, खड़क सिंह, मतलब ऐसे शेफ थे जो मानने, उनके साथ काम करके हमने जब देखा उनको, तो हमें लगा वाकई में कुकिंग एक ऐसी चीज है जो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है।
कोई एक हाथ से फैमिली नाम कैसे लगा सकता है बिना गद्दी के, वो हमने उनसे देखा था, खड़क सिंह जी से। पत्थर के कबाब हमने खड़क सिंह जी से देखे थे। तो वो शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग उनके साथ काम कर पाए। तो आज ऐसे शेफ नहीं मिलते हैं, आज पेपर वाले शेफ मिलेंगे आपको, जो पेपर में शायद आपको सिखा देंगे। तो वो भी, ये भी एक टैलेंट है, वो भी एक टैलेंट था, लेकिन हम उस टैलेंट को ज्यादा अच्छा मानते हैं। Sometimes I surprise कि एक जो जैसे मैंने, आपने, देवाशीष सर ने, उनके साथ मैंने LPU में भी काम किया है, तो हमने काफी चीजें मतलब शेयर की हैं। हम बैठते थे, बातें करते थे कि मतलब हमारा स्ट्रगल इतना रहा है इंडस्ट्री से कि हमने 12 घंटे 13 घंटे जॉब करके कड़छियां पड़ती थी पीठ पे, अगर कुछ ऐसा गलत कई बार अगर डाल दिया तो शेफ्स ही ऐसे होते थे। लेकिन वो स्ट्रगल, वो जो हमने देखा, और आज कई लोग, मतलब कई लोग ऐसे हैं कि विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी किसी चीज के, दे आर टेलिंग देम कि ओके हम शेफ हैं और सिर्फ एक रेसिपी फॉलो करना है। दैट्स नितेश जी, हमारे टाइम में तो मतलब के कन्विंस भी नहीं होता था। रात को 9 बजे के बाद दिल्ली में बस नहीं चलती थी, और अशोक होटल लेट नाइट एवरीडे पार्टी होती थी अशोक होटल के अंदर। जी एक हफ्ते घर नहीं जा पाता था, और जब मैं हफ्ते बाद घर जाता था, क्योंकि हमें वही रूम दे दिया जाता था होटल में कि आप यहीं ठहरो, सुबह फिर। जब मैं एक हफ्ते बाद घर गया तो घर वालों ने मुझे पहचानना मना कर दिया, क्योंकि ओवरवेट, मेरा वेट ओवर हो गया था। ब्रेकफास्ट वहीं, लंच वहीं, डिनर वहीं। बोल रहे क्या हो गया तेरे को? मेरे को पैंट नहीं आ रही है, मेरे को टी शर्ट नहीं आ रही है। सो आई मीन इट्स द हार्ड वर्क कि हम लोग वहीं रहते थे। ब्रेकफास्ट करना है, डिनर करना है, लंच करना है, पार्टी चल रही है, इवनिंग में बैंक्वेट में चल रही है। सो इट्स द हार्ड वर्क। तो बहुत अच्छा था, बहुत हार्ड वर्क किया है, डांट भी खाई है, मार भी खाई है। तो शायद उसी वजह से आज हम आसान की जिंदगी जी पा रहे हैं। नहीं तो शायद उस टाइम अगर आसान की जिंदगी जीते तो शायद आज मुश्किल में होते। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच शेफ्स, आपके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। both for you, I would really wholeheartedly thankful to you, आपने precious time मुझे दिया। Then देवाशीष सर, आपके लिए तो I have no words because you are always with me। कोई भी मेरे पास कोई आइडिया आता है, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और सिर्फ देवाशीष सर सिर्फ इतना कहते हैं कि सर गो हेड शेफ, आप आगे करिए इसको, और हम सपोर्ट में हैं आपके। वर्ल्ड शेफ फेडरेशन, वर्ल्ड शेफ चॉइस मैगजीन आपके साथ है। व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू डू इट। और मैंने तकरीबन इस इवेंट को कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने शेफ को मैं परेशान नहीं करता हूँ, अरे शेफ आज ऐसा है, हम डिस्कस करते हैं, सो रियली थैंकफुल टू यू सर, शेफ देवाशीष, कि आपने हमारे इवेंट को, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज हम दोनों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, हम दोनों ने काफी इकट्ठे काम भी किए, एक ही जैसी हमारी सोच भी चलती है। वी ऑलवेज वर्क फॉर द स्टूडेंट, और कुछ सीखना हमें भी पसंद है, और उससे भी ज्यादा पसंद है सिखाना बच्चों को और उनको टीच करना। So this is what we are doing। चलिए, सो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं हम। मैं अनाउंस करता हूँ देन रिजल्ट। सो फर्स्ट, सबसे पहले एप्रिसिएशन अवार्ड जो है वो अनाउंस कर रहा हूँ मैं। सो फर्स्ट एप्रिसिएशन अवार्ड जाता है मिसेस हामिद को फ्रॉम बेंगलोर, कर्नाटका, और उनकी जो रेसिपी है उसका नाम है अंगारे वेजिटेबल्स एंड यकीनी पुलाव। सो congratulations Mrs. Hamid। Then next appreciation is award is for Divya, जिनकी रेसिपी है भात के दुबके, and she belongs to Ramnagar, Uttarakhand। So Divya, that is bhatke dubke, bhatke, sorry, bhatke dubke, I'm sorry, but is very famous in Uttarakhand। Okay, yes, okay। Then third appreciation award is Miss Bindya for her authentic recipe for Kheer Sangri, and she cooked in the pot. So she is from Ajmer, Rajasthan। So Bindya, congratulations to you। And then Chef Lawrence Gomes, the combination with the chicken salad and dessert, and from Ambe Valley City, Maharashtra। So Chef Lawrence, again congratulations to you, and thanks for the participation।
So these are the appreciations award. So now I want to announce the uh, main winners, or on number 3rd is Isha Sherawat for Desi Haryanvi Thali, student of SRM University, Panipat. So Isha Sherawat, many congratulations to you from my team also, and It was wonderful. keep it up. Keep it up. Yeah. Then next is for Ritu Jaiswal for her beetroot rollad recipe from Lucknow, UP. Congratulations, Ritu. Awesome. That was awesome. Yeah, and then first rank goes to Ayushi Gupta, Goon Ke Laddu, Jalna, Maharashtra. So congratulations to Ayushi Gupta, and congratulations to all participants for your participation, and kindly stay tuned with us. All the viewers, kindly stay tuned with us for the DAV Super Chef Second 2, and आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं या फ्यूचर में सुनेंगे, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने DAV सुपर शेफ को या DAV को इतना प्यार दिया, और प्लीज इसी तरीके से हमसे जुड़ते रहिए. और सेकंड सीजन के लिए अगर आपके पास कोई थॉट्स हैं कि किस चीज पे अगर हमारा सेकंड सीजन होना चाहिए, तो आपके सजेशंस वेलकम हैं. यू कैन टेक्स्ट अस, यू कैन मैसेज अस ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट page and Facebook page as well. So yes, so thank you very much, Master Chef Kutub sir, and Chef Dr. Izzat Hussain, Chef Devashish Pandey, and all the jury members to joining me and make this event successful. And so or at the end, this conversation is just like anything for me. Really appreciate it. Thank you so much, Nitesh Chef, for your kind words and always being supportive. Thank you, Dr. Izzat Hussain Chef. Always, you are my mentor, you are my teacher. So for you, always the respect comes from my bottom of my heart. And Chef Kutub Singh Negi, sir, always there. जब भी मुझे चाहिए कुछ भी guidance, I'll be just calling you, and I'll be keep on disturbing you. So thank you so much, Chef. Thank you so much, Chef. Thank you so much, Chef. Me too, Chef. Anytime, sir, anytime. You have my number, just call me anytime. Chef Izzat Hussain, I want to just want to tell you कि मैं आपके वहाँ पर आके मैं visit करना चाहूँगा आपके outlet पे नोएडा में, and I would love to meet you, and I'm looking forward. Most welcome, and I would like to request to Devashish, please share my number to the Chef Negi and to you also, and please get in touch. And other whoever want my number over there also, so please get in touch and ask me anything, whatever you want, and I'm here to share you what I have learned. Thank you so much. Okay, thank you, everyone. Sir, I won't leave. Chef Negi, it was very nice meeting to you. And hope we will get connected in future also, and Nitin, and all the participants, Dr. Neelu Malhotra and Jasdeep Johals and Joshan ji, everyone, and everybody, whatever is here, don't mind. I am not taking the name of the people. Yeah, I can understand. Sure. So, आप लोग तो अभी carry on, and congratulations. You did a very good job. And I was not hearing properly. I'm not getting the voice properly. So Devashish, please share the names of the winners and winners over here on my WhatsApp also. Definitely, sir. And thank you very much. Take care, everybody. Bye. See you again in such type of the webinar, and very soon, I hope. So thank you. Yeah. Thank you so much, Chef, for your presence. Okay. Yeah. So thank you, everyone. To make thank you, once again. So thanks from our side also. Thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable time.
especially at the night. Especially at the night. It's almost 12 Yes, o'clock. sir. अभी मैं अपना पीछे कर दिखाऊंगा तो पीछे मैंने भुट्टे लगा रखे हैं पूरा Okay, sir. मैंने Nice, nice. Yes. मैंने भुट्टे लगा रखे हैं, सब लगा रखा है। अभी ऐसे ही पड़ा, अभी नाइट हो गया, अभी क्या करें, बहुत रात हो गई। हाँ, अभी टाइम लगेगा तो दिन में आपको दिखाएंगे। बट थैंक यू एवरीवन। तो नितेश जी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, देवाशीष जी को भी बोल रहा हूँ, और जितेंद्र जी तो ऑलवेज, उनको तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज जो आप लोगों ने ये किया है ना, इसको आप आगे लेके चलिए प्लीज। श्योर। मेरे कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। टेक माई नंबर फ्रॉम देवाशीष, फ्रॉम जितेंद्र सर। कॉल मी एनी टाइम फॉर दिस मैटर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है सर। एंड आई प्रॉमिस यू शेफ, ये डेफिनेटली आगे तक जाएगा और बहुत लंबा जाएगा और बहुत अच्छा करने वाले हैं हम लोग। इट विल लाइक जस्ट लेजेंड। एक ये डीएवी सुपर शेफ एक काफी अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर। हाँ जी। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। टेक केयर। Thank you so much. Thank you, sir. Okay, sir. I'll also take leave. Yeah, Devashish. Yes. Thank you so much for your everything. All these things. Thanks for joining. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Devashish, sir. Thank you. Okay, Sarojit ma'am, now over to you for the rest of the event. Thank you, sir. It's over to the judges now. First of all, I would like to introduce our judges from the dancing category. It's Dr. Neeru Malhotra from the ECE department, HOD from ECE department, Dr. Suman Tandon, Associate Professor from the Management Department, Mrs. Rajendra Veer, Assistant Professor from the IT Department, and Mr. Vikas Sharma from Assistant Professor from MCA Department. And now I would like to request Dr. Neeru Malhotra to kindly announce and declare the judgment of dancing category. Ma'am, please, over to you. Thank you, Sarabjot. A very warm and healthy morning to all present here. First of all, I would like to congratulate Mr. Nitesh Thakur for the wonderful success of the Tourism Day event and the marvelous effort done by Mrs. Jasdeep Johal and Sarabjot Kaur. During these tough days, these kind of events ensure that the children are active and chestful even sitting at their home. Choosing one winner was tough, as every student excelled in different ways. In the opinion of all the judges, you all are winners, but we have been choose to only 3 positions, first 3 positions, and consolation prizes. The consolation goes to Mosam Kumari from Deviate, Bihar, and second is Muskan Sharma, Sarup Rani Government College from Amritsar. And now the second runner-up is Bhavya from Deviate, Jalandhar. And first runner-up is Monu Rai from Darbhanga, Bihar. And the first position goes to Vidhi Arora from Cambridge School, Jalandhar. Congratulations to all the winners and best of luck everyone for your bright future. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. And the next category is painting, and I would like to introduce the judges of painting category. Dr. Chintu Raza, Assistant Professor from the Department of Electrical Engineering, Dr. Lav Kumar, Assistant Professor from the Department of ECE, Dr. Shivani Vij, Assistant Professor from Applied Science Department, and Ms. Rita Bhardwaj, Assistant Professor from the IT Department. And here from I would like to request Dr. Chintu Raza to kindly announce and declare the judgment of painting category. Chintu ma'am, over to you. Good morning to one and all present here. So thank you very much for giving this opportunity to announce the name of the winners.
So first of all, I'll announce the name of the consolation prizes. So the first consolation prizes, it goes to Maisha Mahayat Noor. She is from National Ideal College, Dhaka. Then second prize is Yashika from David Jalandhar. Third prize is Michelle from Police DAV Public School, Jalandhar. Fourth prize is, it goes to Vanshika from DSSD Girls Senior Secondary School, Jalandhar. Fifth prize is Priya Kumari from Government School, Patna. Then sixth prize goes to Shubham Kumar from BD College, Patna. Seventh consolation prize is Sudhir Gupta from David, Jalandhar. Eighth prize is Simran Nigar from David, Jalandhar. Then next name is Manisha Dev from St. Xavier College, Patna. And the 10th prize goes to Khileri Rachita Balasaheb from Residential High School, Ahmednagar, Maharashtra. So this was the list of 10 consolation prizes. Now the third position, it is backed by two students. One is Harsh Raj from David Jalandhar, and another bracketed third position goes to Syed Junaid Hussain from JNV Baramulla, Jammu and Kashmir. Again, second position goes to two students. One is Anushka Kapoor from Police TAV Public School, Jalandhar, and another is Ankita Thakur from David, Jalandhar. And the first position goes to Saurabh Kumar from College of Art and Craft, Patna, Bihar. So this is all about the list of winners. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. And Nitish sir, should we wind it up? Or once we should display the result? No, it's okay. If we want to display the result, it totally depends on you. It's okay. Okay. The result will be displayed on the website also? Yes, yes. Thank you so much. Then we should, I must say, thanks to all of you, thanks to the whole of the team who is working at the back end, who is working at the front end. Well, I must say COVID has come up with lot of opportunities and lot of challenges also. This was a challenge also, and this was an opportunity also, because last year when we organized this event, then it was just an in-house event, and we were just limited to the campus now. And now this time we have connected to the overseas people. Maybe it is judges also, and though it is contestants also. And so we are thankful to you, Nitish sir, so that and congratulating to you for organizing such kind of event. And I must say once again, thanks to the team, the IT team, Sandeep sir, and your coordinators, and moreover the supporting team. One of the member I know, Ma'am Kanika Kapoor, ma'am. She is also handling the things in a very well way, and whoever is working at the back end, I must say, I must congratulate to all of you, all the team members, and thanks to all of you. Okay. So thank you. Yes. So thanks to all of the jury members and all the team members who are been working from last 2 or 3 days, working on the results and all that. So I just want to say, Team David, we rock again. Yes, sir. Definitely. Thank you. Thank you. We will. Thanks. Thanks for your lovely support. Thank you. Thank you so much, sir.